Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to ARD Static Series. So aspirants, today we will be covering the chapter farming system. ठीक है, we have already covered introduction to agriculture and agronomy. So today we will be covering the chapter farming system. But before starting this video, I wanted to answer the question that I have given you in the previous video, which was which of the following is defined as the system in which the soil is left undisturbed from harvest to planting except for nutrient injection. ठीक है, your options are minimum tillage, no tillage, zero tillage, both B and C, all A, B, C. तो यहाँ पे आंसर होगा आपका both B and C, that is zero tillage and no tillage. ठीक है, so हमने पढ़ा है कि ये कौन सी कंडीशन होती है जहां पे हम बिल्कुल भी टिलेज ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं एंड वी आर जस्ट सप्लाइंग न्यूट्रिएंट टू द सॉइल. ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So before moving on to the today's video, I have an announcement that we have launched a comprehensive NABARD guidebook for you, which is your one-step solution to all your queries regarding NABARD and NABARD examination. Not only that, it will also provide you the decoded syllabus as well as PYQs, which you can refer to see that what kind of questions are being asked in NABARD grade A. Not only that, it will also provide you the strategy and resources to crack this NABARD grade A examination, and that too for free. Yes, you can avail this guidebook for free, and for that you have to go to the description box, click on the link, register yourself and avail this guidebook for yourself. ठीक है, तो with that informative announcement, let's start our today's lecture, that is lecture 3 on farming system. सो एस्पिरेंट्स देखो, जो लास्ट प्रीवियस हमारी ARD स्टैटिक सीरीज हुई थी, देयर आई हैव कवर्ड टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम. ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, उसमें ट्रेडिशनल में सब्सटेंशियल फार्मिंग क्या होता है, शिफ्टिंग फार्मिंग क्या होता है, ऑल दैट आई हैव कवर देयर. देन व्हाट इज सेमी कमर्शियल एंड ऑल्सो ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी हमने थोड़ा बहुत वहाँ पे कवर किया है, राइट. सो यहाँ पे टुडे in this lecture we will be covering organic farming in detail and different type of modern farming and other important concept regarding this farming system. ठीक है, तो हम बहुत सारे important concept यहाँ पे discuss करने वाले हैं. why these concepts are important? because इन concept से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं. दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग इट हियर, राइट. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस इज ऑर्गेनिक फार्मिंग. ठीक है, पहली चीज ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है, और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाबार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज एग्जाम में नाबार्ड के एग्जाम में ऑर्गेनिक फार्मिंग से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट क्या है. सो बेसिकली इट इज कल्टिवेटिंग द लैंड एंड रेजिंग क्रॉप इन सच अ वे as to keep soil alive in good health by use of organic waste, other biological material along with beneficial microbe for sustainable production. Now अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? So basically इसका मतलब है कि we have to cultivate the land, we have to produce the food in such a way that we are keeping our soil alive. ठीक है, we are not degrading our environment. इस तरीके से हमें कल्टीवेशन करना है कि हम एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करते रहें. ठीक है, अपनी सॉइल की हेल्थ का भी ध्यान रखें, एज वेल एज बाय यूजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट. ठीक है, हम लोग बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स यूज करते हैं. उनका ऑल्टरनेटिव अगर हम ऑर्गेनिक वेस्ट यूज करें तो लेस एनवायरमेंट पोल्यूशन होगा, लेस लैंड डिग्रेडेशन होगा, राइट. सो हमें क्या करना है, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं ऑफ थिंग्स विच आर पोल्यूटिंग आवर एनवायरमेंट. ठीक है, तो बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब यही होता है कि हमें इस तरीके से फार्मिंग करनी है कि हमें अपने एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है और एक सस्टेनेबल वे में हमें प्रोडक्शन लेना है फ्रॉम द लैंड. ठीक है, सो हाउ वी कैन डू इट, हाउ कैन वी अचीव इट? सो बेसिकली हम ऑर्गेनिक वेस्ट को यूज करके अचीव कर सकते हैं. देन कुछ बायोलॉजिकल माइक्रोब्स होते हैं, बायोलॉजिकल मटीरियल, बायोलॉजिकल माइक्रोब्स होते हैं दैट आर बेनिफिशियल. ठीक है, नाउ यू विल बी लाइक कि मैम ठीक है हम ऑर्गेनिक फार्मिंग तो कर लेंगे, बट व्हाट विल बी द अल्टरनेटिव ऑफ फर्टिलाइजर, व्हाट विल बी द अल्टरनेटिव ऑफ पेस्टिसाइड, क्योंकि इनके बिना तो प्रोडक्शन अच्छा होगा नहीं, राइट. न्यूट्रिएंट कमी हो जाएगी तो क्या करेंगे, अगर हमारा इंसेक्ट पेस्ट हो गया क्रॉप में, देन व्हाट विल डू. सो बेसिकली we have to find the alternative. Okay, we have to find the natural alternative of all these chemicals. तो अगर हमारे पास फर्टिलाइजर का अल्टरनेटिव होगा तो we will be going for organic waste, organic manure. ठीक है, अगर हमें माइक्रोब्स, अगर हमारे खेत में कोई पेस्ट अटैक हो गया है तो उसका हम अल्टरनेटिव देखेंगे कि उसका कौन सा ऐसा बायोलॉजिकल एनिमी है विच वी कैन इंट्रोड्यूस एंड किल दैट पेस्ट. ठीक है, सो वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग द बायोलॉजिकल माइक्रोब्स ऑल्सो, राइट. एंड ऑल्सो you know these beneficial microbes can be
utilized for increasing the production in environmental friendly way. So I hope अब आपको समझ आ गया होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम का मतलब क्या है. बेसिकली ऑल इन ऑल ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम में वी आर नॉट यूजिंग एनी केमिकल पेस्टिसाइड, एनी हर्बिसाइड, केमिकल एनी हर्बिसाइड. वी आर जस्ट टोटली रिलाइंग ऑन द नेचुरल वेस्ट, नेचुरल मेन्योर, ठीक है, नेचुरल अल्टरनेटिव्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, जो हमारे एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहा है. सो आई होप नाउ ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम इज क्लियर टू यू. ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. ठीक है, इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है. सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस फूड विद हायर न्यूट्रिशनल क्वालिटी. सी, nutritional quality is also important of our food due to use of these pesticides, these chemicals. अब क्या हो रहा है कि जो हमारा फूड है, जो हमारा फूड प्रोड्यूस है, उसमें क्या हो रहा है, केमिकल रेसिड्यू हो रहा है. ठीक है, दैट इज वाई ड्यू टू दैट मेनी डिजीजेज, मेनी हेल्थ इश्यूज आर अराइजिंग, राइट. सो टू प्रोड्यूस हायर न्यूट्रिशनल क्वालिटी फूड, दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि हमें जो है वो हाई न्यूट्रिशनल क्वालिटी का फूड मिले, राइट. देन इज work with natural system, very important. We have to work with natural system, otherwise we will have to face the consequences also, right. तो हमें क्या करना है, इकोसिस्टम को, एक environment को बचाते हुए अपना प्रोडक्शन भी करना है, राइट. सो बेसिकली वी हैव टू वर्क विद द नेचुरल सिस्टम. देन मेंटेन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी आर ग्रोइंग क्रॉप्स इन सॉइल, राइट, इन लैंड. तो अब हमें सॉइल की फर्टिलिटी का भी ध्यान रखना है. अगर हम केमिकल्स अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है, तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है विद टाइम इट विल डिग्रेड, राइट, डिक्रीज एंड डिग्रेड. सो हमें क्या करना है, हमें कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव ढूंढना है कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे, इंक्रीज हो जाए. ठीक है, सो वी हैव टू, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ organic farming. Then allow satisfaction to agriculture producer, okay, and also farmers हैं, और जो अगर if they are going for agriculture, if they are going from for organic farming, ठीक है, then they should have that satisfaction, means उनको उतनी इनकम मिलनी चाहिए. they should have that benefit also, ठीक है, कि if they are going from organic farming, you know that organic farming में जो भी organic produce होता है, they are costlier than commercial produce, right. So that is why to produce for the satisfaction of farmers. Then use renewable resources, very important. environment को बचाना, तो we have to use the renewable resources. wider social economic impact of farming system and avoid pollution. ठीक है, so these all are the objective of farming system. ठीक है, now I hope it is clear to you कि farming organic farming system क्या है और उसके objective क्या है. now let us discuss the component of organic farming. this is very important क्योंकि यहाँ से इनके component से questions पूछ लिए जाते हैं, right. so आपको पता होना चाहिए कि organic farming system के component क्या क्या हैं. so very first is crop rotation. So जैसे नाम, as the name suggests, crop rotation. So here what we are doing, we are rotating the crop. ठीक है, this is one of the component of organic farming where we are rotating the crop. And why we are doing so? See, अगर हम एक ही क्रॉप को बार बार लगाते जाएंगे या फिर एक ही क्रॉप सिस्टम फॉलो करेंगे, सो जो हमारी सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी है, फर्टिलिटी है, दैट विल डिग्रेड, क्योंकि वो एक ही तरह का न्यूट्रिएंट सप्लाई कर करके दैट विल डिग्रेड, दैट न्यूट्रिएंट इन सॉइल विल डिग्रेड. सो टू रिप्लेनिश दिस न्यूट्रिएंट, ठीक है, न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश करने के लिए वी हैव टू गो फॉर सम अल्टरनेटिव दैट इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी. ठीक है, सो दैट इज वाई वी हैव टू गो फॉर क्रॉप रोटेशन इन विच क्रॉप्स आर रोटेटेड ईयर आफ्टर ईयर. ठीक है, हम क्रॉप रोटेट कर रहे हैं, वी आर नॉट सोइंग same crop year after year, we are just rotating the crops just to maintain the fertility of soil, because that is one of the objective of organic farming, right. so that is your crop rotation. Then crop residue utilization. now in farming system whenever we are cultivating the crop residue बहुत ज़्यादा हो जाता है, right. so अब हमें इस crop residue का भी utilization करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, we can go for composting of these residue and we can make compost out of this residue. एंड इस कंपोस्ट को हमें क्या करना है, फील्ड में अप्लाई करना है, सॉइल में अप्लाई करना है, जस्ट टू कंडीशन द सॉइल. ठीक है, कंपोस्ट अप्लाई करके सॉइल की हेल्थ अच्छी हो जाती है, राइट. सो वी कैन यूटिलाइज दिस क्रॉप रेसिड्यू लाइक दिस. देन वी हैव ऑर्गेनिक मेन्योर. ठीक है, सो हमारे जो प्लांट वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट होता है, दैट कैन बी यूज्ड एज मेन्योर बिकॉज दे कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर, दे कैन बी गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल. ठीक है, सो दिस इज
ऑर्गेनिक मैन्योर। सो हमें क्या करना है, जो भी हमारे प्लांट रेसिड्यू है, एनिमल रेसिड्यू है, जो भी प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट है, उसको यूटिलाइज करना है एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है। देन वी हैव वेस्ट मैनेजमेंट। देन देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट, ठीक है, उसको हम मैनेज भी कर सकते हैं। लाइक वी कैन यूज गो फॉर बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है, बायोगैस प्लांट लगा दिया फार्मर ने, अगर वहां पे उसको वेस्ट को डिकम्पोज करके दे कैन यूज दिस बायोगैस फॉर देयर other things, right. So waste management is also one of the component. Then biofertilizer, very important. Biofertilizer means, see, as the name suggests, biofertilizers means we are using living microbes for the supply of nutrient to the plant, ठीक है। बायोफर्टिलाइजर का मतलब होता है कि हम लिविंग माइक्रोब्स को यूज कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट टू the soil, to the plant, ठीक है। So basically these biofertilizer, they help in nitrogen fixation, they help in nutrient fixation in the soil and thus supplying this to crops, ठीक है। So biofertilizer का मतलब समझ में आ गया कि biofertilizer means we are using living microbes, living organism as a source of nutrient to the crop, to the soil, ठीक है। Now biopesticide, now as the name suggests, biopesticide, pesticide का काम क्या होता है, to kill microbes, to kill pests like insects, pathogens and other things, other diseases, ठीक है। तो इसका biopesticide में क्या होता है, pesticide is chemical and biopesticide is the alternative, that is when we are using the living microbes to kill the pest, weeds and disease, okay, any insects in the field, so that is called as biopesticide, ठीक है। now I hope अब आपको biopesticide पता हो गया, जब हम किसी living microbes को यूज कर रहे हैं as a pesticide against weeds or disease or insect, ठीक है, that is your biopesticide. Then we have vermicompost. Now what is this vermicompost? Vermi, see, इस word को break करो, vermi and compost. Vermi means we are using worms, okay, and these worms are earthworms, ठीक है। So whenever we are making compost, ठीक है, with the help of earthworms, that is known as vermicompost, ठीक है। and the quality of vermicompost is very good, क्योंकि वहां पे earthworm के थ्रू decomposition होता है, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा उसकी nutrient quality अच्छी होती है due to the decomposition by earthworm, वहाँ earthworm उसको अच्छे से digest करता है। then we have earthworm का excreta is also there, right, so that is why this vermicompost, this has a good quality, ठीक है। so this is also one of the component of organic farming. Now I hope this is clear to you, ठीक है। crop rotation, crop residue utilization, organic manure, waste management, biofertilizer, biopesticide, vermicompost, these all are the component of organic farming, and now I hope this is clear to you, ठीक है। so that was So that was all about the organic farming and the important concept of organic farming that you should know. अब अगर वहां से कहीं से भी क्वेश्चन आता है, like अगर क्रॉप रोटेशन से क्वेश्चन आता है, यू शुड बी एबल टू आंसर बायोपेस्टिसाइड, बायोफर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर, वर्मी कंपोस्ट, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है, नाउ यू शुड बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट तो हो गए। नाउ लेट्स डिस्कस सम मोर फार्मिंग टेक्निक्स दैट वी कॉल एज मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, ठीक है। कुछ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर गेनिंग मच अटेंशन राइट नाउ, ठीक है। इन द प्रेजेंट सिनेरियो दीज फार्मिंग टेक्निक्स आर गेनिंग मच अटेंशन। Why and what are they? Let me tell you, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब क्या होता है मॉडर्न फार्मिंग का? मॉडर्न फार्मिंग मीन्स फार्मिंग यूजिंग modern technique and technology. Whenever we are using any modern technique or technology for the farming system, that is your modern farming. Simple, right? So ये तो हो गया मॉडर्न फार्मिंग का मतलब। अब कौन कौन से टाइप की मॉडर्न फार्मिंग है, कैसे होती है, क्या होती है, राइट, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, लेट मी टेल यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज हाइड्रोपोनिक सिस्टम, ठीक है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है आजकल, आपको हर जगह सुनने में मिल रहा होगा। हाइड्रोपोनिक्स कर लो, दिस इज अ हाइड्रोपोनिक्स प्रोड्यूस, दिस इज अ ऑर्गेनिक वेस्ट फ्री, पेस्टिसाइड फ्री प्रोड्यूस। सो हाइड्रोपोनिक्स इज अ growing sector, ठीक है। दिस इज अ ग्रोइंग टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम इन नॉट ओनली आवर कंट्री बट ऑल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, राइट। सो हाइड्रोपोनिक्स में होता क्या है बेसिकली? सो ये एक ऐसी टेक्निक है जहां पे हम क्रॉप ग्रो तो कर रहे हैं, बट दिस इज सॉइल लेस कल्चर, मीन्स वी आर नॉट यूटिलाइजिंग सॉइल। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि अगर हम सॉइल में क्रॉप को ग्रो नहीं कर रहे हैं तो किस मीडियम में ग्रो कर रहे हैं? सो बेसिकली द मीडियम हियर इज योर वाटर, ठीक है। वाटर इज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट टू द plants. अभी कैसे होता है, let me tell you, see, we are growing crop, as you can see in the picture, these are the
crops, ठीक है. These are the seedlings and we have kept them into the सम पॉट्स, ठीक है. किसी पॉट में उसको हम सो कर देते हैं और वहाँ पे हम कभी कभी पर्ललाइट, वर्मिकुलाइट और कोकोपीट ये एज अ सबस्ट्रेट यूज करते हैं ताकि जो आपकी प्लांट की रूट है दैट कैन गेट अडहेयर टू समथिंग, ठीक है, क्योंकि उसको एक सपोर्ट मिल सके. सो वी आर यूजिंग सच काइंड ऑफ सबस्ट्रेट हेयर एंड देन वी आर फ्लोइंग द वाटर, ठीक है. हम वाटर का फ्लो मेंटेन करके रखते हैं और इस वाटर में हम न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं. जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट्स के लिए जरूरी है, वी प्रोवाइड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स थ्रू द फ्लोइंग वाटर एंड प्लांट एब्जॉर्ब दीज न्यूट्रिएंट्स थ्रू दिस वाटर एंड ग्रो, ठीक है. सो अब हमें यहाँ पे सॉइल की जरूरत नहीं पड़ी, ओके. प्लांट ही सफिशिएंट था. जस्ट वी नीड अ सपोर्टिंग सिस्टम एज अ सबस्ट्रेट जो कि हमने वर्मिकुलाइट, पर्ललाइट ये सब यूज करके उसको सपोर्ट दे दिया, राइट. सो अब ना आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे, हाउ हाइड्रोपोनिक्स इज अ टेक्निक ऑफ सॉइललेस कल्चर, ठीक है. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वाटर, वी आर यूजिंग वाटर एज अ मीडियम, वाटर में ही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं एंड वी आर रनिंग दिस वाटर इन अराउंड द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड द प्लांट रूट इज इजिली एबल टू एब्जॉर्ब दिस न्यूट्रिएंट फ्रॉम द रनिंग वाटर, ठीक है. सो ये हो गया आपका हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम, ठीक है. नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम क्या होता है. देन नेक्स्ट वी हैव एरोपोनिक सिस्टम, ठीक है. अब हाइड्रो मीन्स वाटर, राइट. तो यहाँ पे वाटर एज अ मीडियम है. एरो मीन्स एयर, ठीक है. हेयर वी आर नॉट यूजिंग वाटर एज अ मीडियम, ठीक है. हेयर द प्लांट रूट आर सस्पेंडेड इन द एयर. यहाँ पे हम वाटर यूज नहीं कर रहे हैं. जो प्लांट की रूट्स है दे आर सस्पेंडेड इन द एयर. अदरवाइज उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, पानी की जगह हम मिस्ट यूज कर रहे हैं. वी आर जस्ट स्प्रेइंग द वाटर टू द प्लांट रूट्स. उस वाटर में क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है. तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फ्लो ऑफ वाटर नहीं है. यहाँ पे जो प्लांट है उसके रूट्स एयर में सस्पेंडेड है और जो हम न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे हैं वी आर गिविंग इट थ्रू स्प्रेज और थ्रू मिस्ट, वाटर मिस्ट, ठीक है. रूट्स में दे रहे हैं, नॉट, वी आर नॉट डायरेक्टली प्रोवाइडिंग वाटर टू द रूट्स, ठीक है. तो सच काइंड ऑफ सिस्टम इज नोन एज योर एरोपोनिक सिस्टम. सो बेसिकली प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन एयर और मिस्ट एनवायरमेंट विदाउट यूजिंग एनी सबस्ट्रेट. एरोपोनिक्स में वी आर नॉट यूजिंग एनी सबस्ट्रेट वाइल इन हाइड्रोपोनिक्स सबस्ट्रेट्स आर यूज्ड, राइट. सो ये डिफरेंस है एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स का. देन वी हैव एक्वापोनिक्स, ठीक है. एक्वापोनिक्स इज another system where we are integrating the system of crop production and aquaculture. अब इसमें होता क्या है, so basically as you can see in the picture we are cultivating fish, ठीक है. और जो फिश का वाटर है, ठीक है, दिस फिश इज excreting its ammonia into the water and this water is being supplied to the plant root, ठीक है. अब fish का जो excreta है that is ammonia, and ammonia is rich in nitrogen, right. So it is a kind of fertilizer. So this water is acting as a fertilizer. और अब ये पानी जो है वो plant root में दिया जाता है and from there the plant root absorb the nutrient and grow. So such kind of system is known as aquaponic system, right. So I hope now aquaponic system is clear to you. Moving on to the next, that is tissue culture system. ये थोड़ा advanced farming system है. This system is very advanced because this we need advanced lab, advanced technology, right. So tissue culture system में क्या होता है, we are cultivating plant cells in the nutrient media, ठीक है. होता क्या है कि कभी कभी we need fast propagation, okay. in field condition फास्ट प्रोपगेशन पॉसिबल नहीं है. क्यों, फील्ड में बहुत सारी बायोटिक एंड नहीं बायोटिक स्ट्रेसेस होते हैं जो प्लांट को फेस करने पड़ते हैं. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गोइंग फॉर अल्टरनेटिव मेथड दैट इज टिश्यू कल्चर. सो हियर व्हाट वी आर डूइंग, हियर वी आर प्रोड्यूसिंग द प्लांट थ्रू मीडियम, ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, टेस्ट ट्यूब में एक मीडिया प्रोवाइड किया जाता है एंड वहाँ पे कोई पार्ट ऑफ प्लांट को हम रख देते हैं एंड देयर वी प्रोवाइड द कंजीनियल एनवायरमेंट कंडीशन एंड फ्रॉम देयर द प्लांट अराइजेस, ठीक है. वहां से प्लांट अराइजेस. इजंट इट दैट ब्यूटीफुल, ठीक है. हियर इन टिश्यू कल्चर वी आर प्रोवाइडिंग अ suitable media and suitable environment to the part of plant and then we are growing the whole plant out of that piece of a part of plant, right. अब ये क्लियर हो गया होगा, राइट, कि टिश्यू कल्चर क्या होता है. नाउ मूविंग ऑन टू द अदर, वर्टिकल फार्मिंग, ठीक है. वेरी फेमस कंसेप्ट, आजकल बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट है वर्टिकल फार्मिंग का, बिकॉज यू नो कि अर्बन एरियाज है जहाँ पे लैंड इज, देयर इज नॉट मच लैंड फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, देयर पीपल आर गोइंग फॉर वर्टिकल फार्मिंग, ठीक है. वर्टिकल फार्मिंग में बेसिकली होता क्या है, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग
क्रॉप्स वर्टिकली इन स्टैक्ड लेयर, ठीक है, हम स्टैक लेयर्ड में, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, स्टैक लेयर्ड में हम क्रॉप की वी आर गोइंग फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन स्टैक लेयर्ड, ऐसे इस तरीके से हम क्रॉप ग्रो करते हैं। अब आप देख सकते हो कि विद इन इतने कम एरिया में कितनी सारी क्रॉप्स आ सकती है, राइट। सो इट इज़ अ मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम, और आपके वर्टिकल फार्मिंग सिस्टम के अंडर ही आपका हाइड्रोपोनिक्स आता है, राइट। हाइड्रोपोनिक्स है डिफरेंट टाइप ऑफ जो सिस्टम हमने पढ़े, जो भी स्टैक्स में होता है, ठीक है, जहां पे भी स्टैक्स की जरूरत होती है, दे आर अंडर योर वर्टिकल फार्मिंग, करेक्ट। ये हो गया क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द प्रिसिजन एग्रीकल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रिसिजन एग्रीकल्चर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या होता है, दिस इट इज द साइंस ऑफ इंप्रूविंग क्रॉप यील्ड एंड असिस्टिंग मैनेजमेंट डिसीजन यूजिंग हाई टेक्नोलॉजी सेंसर एंड एनालिसिस टूल्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाई टेक सेंसर टेक्नोलॉजी, एनालिसिस टूल, ड्रोन्स, दे आर यूज्ड। अब पहले तो प्रिसिजन एग्रीकल्चर का मतलब बताती हूँ आपको। बेसिकली प्रिसिजन एग्रीकल्चर मीन्स प्रिसाइज एप्लीकेशन, राइट। वी हैव टू precisely identify the problem, whether it is in the field or whether it is in the plant, okay, whenever we are going for the precision, ठीक है, बहुत ही precision से हम देख रहे हैं कि कहाँ पे फील्ड में प्रॉब्लम है, किस प्लांट में प्रॉब्लम है, किस एरिया में प्रॉब्लम है, that is known as your precision agriculture, ठीक है। precision agriculture को हम site specific agriculture भी बोलते हैं, ठीक है, that is why it is also known as site specific agriculture, ओके। एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग हाईटेक टेक्नोलॉजी, वी आर यूजिंग सेंसर्स, वी आर यूजिंग ड्रोन्स, दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज डिजिटल एग्रीकल्चर, ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज डिजिटल एग्रीकल्चर, क्लियर। एंड ऑल्सो इट इज ऑल्सो नोन एज सैटेलाइट फार्मिंग, ठीक है। वन मोर टर्म दैट इज गिवन टू प्रिसिजन एग्रीकल्चर इज सैटेलाइट फार्मिंग। वाई, बिकॉज यहाँ पे हम जीपीएस का यूज करते हैं, वी आर यूजिंग द जीपीएस सिस्टम टू लोकेट द लोकेशन कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे नहीं है। सो दैट इज वाई वी आर नोनिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज सैटेलाइट फार्मिंग। तो अगर आपको कहीं पे भी टर्म प्रिसिजन एग्रीकल्चर, साइट स्पेसिफिक फार्मिंग, डिजिटल एग्रीकल्चर और सैटेलाइट फार्मिंग मिलेगा, सो दैट इज ऑल इन ऑल इज टॉकिंग अबाउट योर प्रिसिजन एग्रीकल्चर, ठीक है। सो ये तो रहा प्रिसिजन एग्रीकल्चर की बात। नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो इस प्रिसिजन एग्रीकल्चर में होता क्या है, व्हेनेवर जैसे हमारे पास ड्रोन्स होते हैं, ठीक है, ड्रोन से हमने देख लिया कि अ पर्टिकुलर लैंड पार्ट हैज सम प्रॉब्लम, ठीक है, तो हमने क्या किया, ड्रोन के थ्रू वहाँ पे फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करवा दिया या फिर वहाँ पेस्टिसाइड एप्लीकेशन करवा दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल थिंग्स आर हैपनिंग थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू ड्रोन्स, ठीक है, कोई लेबर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। एंड हम लोग बहुत ही साइट स्पेसिफिक एप्लीकेशन, साइट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगर न्यूट्रिएंट की कमी लग रही है तो पूरे फील्ड को ही में ही यूरिया डाल दिया, राइट, ऐसा नहीं कर रहे हैं। वी आर सीइंग कि कहाँ पे न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है, कौन से पार्ट में कमी हो रही है, ओनली देयर वी आर अप्लाइंग द न्यूट्रिएंट, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्रिसिजन एग्रीकल्चर, ठीक है। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू। Moving on to the other concept, other important concepts. Why they are important? Because यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको क्लियरली बता दूं, इन तीनों टॉपिक से, इन तीनों कंसेप्ट से क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, राइट। सो फर्स्ट इज एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन। सो एज द नेम सजेस्ट इंटेंसिफिकेशन, वी हैव टू इंटेंसिफाई द एग्रीकल्चर, ठीक है। सो एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन का मतलब होता है कि वी हैव टू व्हेन वी आर गोइंग फॉर इंक्रीज इन इनपुट्स, ठीक है, वेदर इट इज योर सीड्स, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, पेस्टिसाइड, व्हाटसोएवर, मैकेनाइजेशन, जब भी हम एग्रीकल्चर में कुछ इंटेंसिव, वी आर गोइंग फॉर इंटेंसिफिकेशन सो दैट आवर लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड योर एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन। सो बेसिकली प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द इनपुट ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्सेज to increase the level of yield per unit farmland or pasture, ठीक है, that is your agriculture intensification, clear। now I hope this is clear to you कि agriculture intensification क्या है, whenever we are going for high input in the agriculture। then we have sustainable agriculture, ठीक है। अब यहाँ नाम से ही पता चल जाना चाहिए, sustainable means whenever we are doing agriculture in such a way that we are meeting our demand as well as we are meeting the demand of future generation, ठीक है, हम future generation का भी ध्यान रख रहे हैं और अपनी डिमांड्स को भी, अपनी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर रहे हैं। सो दैट इज योर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, एज द नेम सजेस्ट क्लाइमेट रेजिलिएंट। तो हमें पता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत चेंज हो रही है, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन हमारा एग्रीकल्चर भी इम्पैक्ट हो रहा है ना। सो बेसिकली द एबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम टू एंटिसिपेट एंड prepare for as well as adapt to absorb and recover from impact of changes of extreme weather condition, that is your
climate resilient agriculture means we have to prepare the agriculture, how much we are prepared. Okay, what is the ability of agriculture to adapt itself for the अपकमिंग चेंज इन क्लाइमेट. ओके, कि वेदर का जो इम्पैक्ट है वो कम से कम हो. दैट इज योर क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर. ठीक है, कि वी आर गोइंग फॉर द सिस्टम कि जहाँ पे जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए हम कितने अडेप्ट हैं. दैट इज योर climate resilient agriculture. ठीक है, very important. Now I hope these concepts whatever I have taught you is clear to you. Now let us practice questions based on the concept whichever we have discussed, right? The very first question is, in which of the following technique plants are grown using water based nutrient solution rather than soil and can include aggregate substrate और growing media such as vermiculite, coconut coir, perlite. ठीक है, very important. हमने डिस्कस कर लिया है. ठीक है, जहाँ पे भी हम वाटर एज ए न्यूट्रिएंट बेस्ड सबस्ट्रेट ले रहे हैं, सॉरी न्यूट्रिएंट बेस्ड solution ले रहे हैं, and we are using substrate for the support of root system. So is it your aeroponics, hydroponics, aquaponics, none of the above, all of the above? So right answer here is hydroponics. तो कहाँ पे होता है ये? हाइड्रोपोनिक्स में होता है. Moving on to the next question, which of the following can be described as a technology-enabled approach of farming management that observe, measure and analyze the need of individual field and crop? ठीक है ना, यहाँ पे आपको क्वेश्चन देख के डरना नहीं है. यहाँ पे we are, it is a technology that is enabling a approach जहाँ पे हम एनालाइज कर रहे हैं नीड ऑफ इंडिविजुअल फील्ड एंड क्रॉप. ठीक है, जहाँ पे हम इंडिविजुअल फील्ड या इंडिविजुअल क्रॉप की चीज़ों को, प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हैं. ठीक है, तो वो किस में होता है? सो बेसिकली it is in precision agriculture which is also known as your digital agriculture, right? और इसको हम site specific agriculture भी बोलते हैं और satellite agriculture भी बोलते हैं. ठीक है, so I think now this is clear to you. Sorry, site specific farming and satellite farming. ठीक है, site specific farming और satellite farming. ठीक है, आपको अगर ये नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में अल्टरनेटिव दिए जाते हैं. ठीक है, प्रिसीजन नहीं दिया होगा आपको, साइट स्पेसिफिक दिया होगा, कभी कभी आपको डिजिटल एग्रीकल्चर दिया होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि दे ऑल आर द सेम टर्म्स. ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड प्रोवाइड देम टू द प्लांट. ठीक है, सो हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड प्रोवाइड इट टू द प्लांट्स. ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बायो फर्टिलाइजर्स. सो दीज आर द बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच वी आर यूजिंग फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट टू द प्लांट्स. ठीक है, सो दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हैज द एबिलिटी टू फिक्स द nitrogen, to fix the phosphorus and provide it to the plant. ठीक है, moving on to the next question, which is, which of the following type of agriculture rests on the principle that we must meet the need of present without compromising the ability of future generation to meet their own need. ठीक है, तो हमें अभी यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हमें अपनी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना है, एज वेल एज वी हैव टू सी फॉर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑल्सो, फ्यूचर जनरेशन की रिक्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है, राइट? एंड सच एग्रीकल्चर इज नोन एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, विच इज द फार्मिंग सिस्टम दैट यूजेस नेचुरल पेस्ट कंट्रोल and biofertilizer and in which simultaneously the use of any type of chemical and synthetic pesticide fertilizer is completely avoided. ठीक है, तो यहाँ पे chemical and synthetic pesticide fertilizer ये सब completely avoid करते हैं. तो ये हम किस में करते हैं? Basically this is done in organic farming. Clear? Now let's move on to the question that you have to practice. This is the practice question for you and you have to do, let me know the answer of this question in the comment box. ठीक है, so basically the question is, name the type of agriculture which is location specific and smart technology that are used to enable farmer to cope up with climate variability and extreme weather phenomena. ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है. Now you have to solve this question and do let me know the answer of this question in the comment box. ठीक है, so that was all student for this lecture. I hope you have understood the concepts that I was trying to teach you here, and you have got whatever I was trying to convey to you. ठीक है, so that was all for this lecture. If you are new to our channel, please subscribe to our YouTube channel, and if you want to download the PDF of this lecture, you can join us on our Telegram channel. So that was all. Thank you so much.